Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So as planned, today we are going to cover up Essay 250, which is Consideration in Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements. In case you are new to this channel, you can check out the description box below for a lot of information which you might be looking for. Okay, so pause the video and just check out the description box below. So let's start with this essay. Essay 250 को करने से पहले let's first of all understand कि इसमें बोलना क्या चाह रहे हैं. What is the brief background or the idea behind this essay? सबसे पहले बोला हुआ है consideration in the laws and regulations in an audit of financial statement. मतलब you have to consider what laws and regulations are applicable to the entity in which the auditor is going to perform the audit. Okay, so the laws and regulations which are applicable to the entity are to be considered by the auditor. Why the auditor needs to consider the laws and regulations applicable to the entity? Is the auditor responsible for complying with the same? No. The primary responsibility to follow the law and regulation is with the management. The management has to comply with the laws and regulations which are applicable to the entity. But as an auditor, my responsibility is to check whether the laws and regulations are being complied or not. I have to obtain the understanding of what laws and regulations are applicable to the entity and how the management is ensuring its compliance. Okay, so for this I might just use the method of inquiry. I could inquire with the management. Okay, tell me what are the internal controls you are using, what are the laws and regulations which are applicable to your entity and how you are complying with them. So I might just inquire with the management. Also, I would check which of them are directly affecting the financial statements, which are not materially affecting the financial statements. So this is what I, being an auditor, do. Okay, so in this case, first of all, we need to understand that this is not the responsibility of the auditor to comply with the rules and regulations or the laws and regulations. ठीक है, तो entity की management has this responsibility. Okay, this is clear. Similarly, we had also covered internal controls की understanding, right? आपको पता है internal controls को comply करना या internal controls को लगाना या उसको check करना, उसको ensure करना कि वो prevent कर रहे हैं, detect कर रहे हैं, correct कर रहे हैं material misstatements को, ये मेरी as an auditor responsibility नहीं है check करने की. But फिर भी मैं करती हूँ. क्यों करती हूँ? Just because I want to make sure कि internal controls कैसे हैं. Internal controls अच्छे होंगे तो मुझे अपने procedures थोड़े कम apply करने पड़ेंगे, कम काम करना पड़ेगा. Otherwise मुझे ज़्यादा detailed checking करनी पड़ेगी. So in order to decide my procedures, I just check the internal controls of the entity. Similarly, to determine whether there are misstatements which might affect my financial statements, the audit of which I am going to do is what is relevant to me as an auditor. That is why I just consider what are the laws and regulations which the entity has to abide by. Okay, so this was just a short and brief crisp idea of this particular essay. Let's start with this essay from the notes. One by one I am going to read the lines and explain you the provisions or the content of this essay. Okay, so let's start with this. First of all, to ensure compliance of laws and regulations that determine the reported amounts and disclosures in the financial statements, it is the responsibility of the management कि जो भी financial statements के अंदर उन्होंने amounts डाले हैं, whether it is with respect to the sales tax, not sales tax now, GST, income tax, any other tax compliance or any other law compliance, whether that amount reported is totally correct, whether it is in compliance with the laws and regulations that is applicable to the entity, whether they have disclosed all the facts which are relevant to be disclosed. So this is what the responsibility of the management is, to make sure that they have to make sure that the compliance of laws and regulations is done properly. ओके, अब मैनेजमेंट काम करेगी ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट सही से कर रही है या नहीं कर रही है, दिस विल बी मेड श्योर बाय द TCWG. The TCWG is going to make sure that the management is fulfilling its responsibility, which is compliance of laws and regulations. Okay, let's move further. This essay deals with the auditor's responsibilities to consider the law and regulations when performing an audit.
तो ऑडिटर को क्या क्या, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस, वो हम इस एस्से के अंदर कवर अप करने वाले हैं। सी इसमें हमेशा हम जब भी एस्से पढ़ते हैं उसके अंदर हम एक पहले ही समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी या क्या था, उसके बाद जाके पहले अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं, पूरे टर्म्स वगैरह समझते हैं, उसके बाद जाके समझते हैं कि एज एन ऑडिटर मुझे क्या करना है ना। तो हर एक एस्से में आपने नोट किया होगा, हमने सबसे पहले पढ़ा है कि इस पर्टिकुलर एस्से में इन टर्म्स का मतलब क्या है, इस एस्से की रिक्वायरमेंट क्या है, ऑडिटर को क्या करना है, क्या काम मैनेजमेंट का है, क्या काम TCWG का है, क्या काम किसी और का है। बट मेरा अल्टीमेटली मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि मेरे को एज एन ऑडिटर क्या करना है। बट एज एन ऑडिटर मुझे क्या करना है, सिर्फ ये पता हो इस बात से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मुझे यही नहीं पता कि मैनेजमेंट, TCWG और लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं कैसे डिटर्मिन कर पाऊँगी कि मेरे को क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, और जो चेक करनी है वो किसको करनी थी, किसको मेक श्योर करना था उसको करने के लिए। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि क्या काम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे कि मैं उसी से जाकर पता कर पाऊँ कि क्या ये काम सही से किया है या नहीं। कूल यहाँ तक? चलो आगे बढ़ जाते हैं। प्रोसीजर्स दैट एन एंटिटी माइंडेड, यहाँ पर क्या लिखा है, सॉरी मैंने एक ये पैराग्राफ मिस कर दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। Accordingly, an auditor is not responsible for preventing non-compliance and cannot be expected to detect the non-compliance with all the legal and regulatory, laws and regulations. इसमें क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि लॉज एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस हुआ है या नहीं, इस बात को लॉ को कंप्लाई करना चाहिए था, इस बात को मेक श्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट ऑन द ऑडिटर। ऑडिटर से आप इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि सारे के सारे लॉज एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस हुआ है। इस चीज़ को ऑडिटर आपको बताएगा कि हाँ हुआ है या नहीं। अगर कहीं पर नहीं हुआ तो वो चीज़ आपको ऑडिटर बताएगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोच के बैठना। ये इस एस्से का कोई भी स्कोप नहीं है, इस एस्से में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। इसमें बोला है जस्ट कि वो चेकिंग करेगा, देखेगा ऊपर से, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा, नहीं हुआ होगा वो देखेगा कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, बस उसको इतना चेक करना है। उसको ये नहीं देखना कि कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस का नॉन कंप्लायंस हुआ है, चलो इसको नोट करते हैं एंड वी विल रिपोर्ट टू द अथॉरिटीज विच आर डायरेक्टली कंसर्न्ड विद दिस। नो, दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन ऑडिटर। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि कितना इफेक्ट कर रहा है, क्या इफेक्ट कर रहा है, कितना अमाउंट आना चाहिए था, क्या डिस्क्लोजर करना चाहिए था, दैट्स इट। ओके, सो लॉज का कंप्लायंस हो, इस चीज़ को मुझे मेक श्योर नहीं करना, मैनेजमेंट को करना है। मैं तो बस जाके अपना ऑडिट करूँगी, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ओपिनियन दूंगी। Okay, so this is what an auditor has to do. Next, procedures that an entity may implement to assist in the prevention and detection of non-compliance with the laws and regulations. Minded, यहाँ पर entity के क्या procedures होंगे उसकी बात हो रही है, अभी तक हम auditor के procedures पर नहीं आए हैं, right? So procedures जो entity implement करेगी जिससे कि लॉज एंड रेगुलेशंस का नॉन कंप्लायंस ना होने पाए, और अगर हो भी जाए तो उसको किस तरीके से डिटेक्ट करके फिर करेक्ट करने की कोशिश करेगी। सो दिस इज व्हाट द प्रोसीजर्स द एंटिटी हैज़ टू इम्प्लीमेंट और एंटिटी माइट इम्प्लीमेंट। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द एंटिटी और व्हाट द मैनेजमेंट इज गोइंग टू डू। First of all, monitor the legal requirements and ensure that the operational procedures are designed to meet these requirements. सबसे पहले तो देखो कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट्स आपकी एंटिटी पर लग रही हैं। इंश्योर करो कि जो भी आप काम कर रहे हो वो उसी तरह से करो जिस तरीके से आप वो लीगल रिक्वायरमेंट्स का कंप्लाई कर पाओ, ठीक है। सेकेंड वन इज इंस्टीट्यूटिंग एंड ऑपरेटिंग द अप्रोप्रिएट सिस्टम्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये मेक श्योर करने के लिए कि आपका काम लॉज एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हो रहा है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ इंटरनल कंट्रोल्स, कुछ कंट्रोल्स लगा सकते हो उसके ऊपर, जिससे कि आप ये इंश्योर कर पाओ कि हाँ ये कंट्रोल लगा हुआ है, मतलब काम सही से हो रहा होगा। लेकिन कंट्रोल को भी आपको रेगुलर बेसिस पर चेक करना पड़ेगा कि सही से ऑपरेट हो रहा है या नहीं, इट इज़ ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। सो इंस्टीट्यूटिंग मतलब लगाना और उसकी ऑपरेशंस करना, उसको कंटिन्यू करवाना द सिस्टम्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, जिसके थ्रू आप मेक श्योर कर सकते हो कि एंटिटी अपने लॉज एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस कर पा रही है या नहीं। ओके, थर्ड पॉइंट, डेवलपिंग, पब्लिसाइजिंग एंड फॉलोइंग अ कोड ऑफ कंडक्ट। एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक पूरा का पूरा तरीका होना चाहिए किसी भी काम को करने का, तो वो तरीका आपने डेवलप किया होना चाहिए।
उसको पब्लिसाइज किया होना चाहिए, मतलब बताया होना चाहिए। और फिर सिर्फ ये नहीं कि बनाया और बता दिया, बट उसको फॉलो करने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। हमें तो सिर्फ बनाने का काम था और पब्लिसाइज करने का काम था, करो मत करो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। नो, मैनेजमेंट को मेक श्योर करना है कि उन्होंने जो कोड ऑफ कंडक्ट को बनाया है, पब्लिसाइज किया है, उसको फॉलो भी करवाए। So that is why developing, publicizing and following a code of conduct is one of the procedures by which the entity might prevent and detect the non-compliance of any laws or regulations. Okay, next, ensuring that the employees are properly trained and understand the code of conduct. अब आपने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, उसको पब्लिसाइज करवा दिया, लेकिन आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरीके से काम करा जाए, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किससे पूछें, कैसे करें। तो इसीलिए हमें एम्प्लॉयज़ से एक्सपेक्ट करने से पहले उनको ट्रेन करना चाहिए। हम जो चाह रहे हैं कि वो काम करें, उससे पहले वी शुड प्रोवाइड देम ट्रेनिंग, वी शुड ट्रेन देम कि इस तरीके से ये काम होना चाहिए। उनको आप ये चीज़ मेक श्योर करो कि आपके एम्प्लॉयज़ को वो बात समझ आइए जो आप समझाना चाह रहे हो। ओके, सो द पॉइंट इज ensuring that the employees are properly trained and understand the code of conduct. Next, monitoring the compliance with the code of conduct and acting appropriately to discipline the employees who fail to comply with it. आप क्या करोगे, कंप्लायंस को मॉनिटर। अब आपने क्या किया, कोड ऑफ कंडक्ट, तो देखो 3 पॉइंट्स तो आपके सीधा सीधा कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड आ गए, तो आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कोड ऑफ कंडक्ट को पहले तो मैनेजमेंट डेवलप करेगी, पब्लिसाइज करेगी और फिर फॉलो करवाएगी। सेकेंडली, वो मेक श्योर करेगी कि फॉलो तभी हो पाएगा जब एम्प्लॉयज़ ट्रेंड होंगे और उनको कोड ऑफ कंडक्ट अच्छे से समझ आया होगा। सो इस चीज़ को मेक श्योर करेगी, तभी कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जा पाएगा। ठीक है, अब आपने सब कुछ समझा दिया, आप अपनी तरफ से सब कुछ कर चुके हो। नाउ यू हैव टू सी कि कोड ऑफ कंडक्ट को एक्चुअली कंप्लाई किया जा रहा है या नहीं। तो इसके लिए आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, आपको अपने एम्प्लॉयज़ को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा कि अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो इससे क्या होगा, आपका कंप्लायंस मेक श्योर हो जाएगा और वो अच्छे से होगा भी। ठीक है, सो monitoring the compliance with the code of conduct and acting appropriately to discipline the employees who fail to comply with it. Right, last point of this is engaging the legal advisors to assist in monitoring the legal requirements. अब हर काम एक जना तो नहीं कर सकता, या सही से हो रहा है इस चीज़ को समझने के लिए भी आपको कोई एक नॉलेजेबल पर्सन चाहिए। सो आप क्या कर सकते हो, लीगल एडवाइजर्स को अपनी हेल्प के लिए असिस्ट करवाने के लिए आप एंगेज कर सकते हो, जिससे कि वो लीगल रिक्वायरमेंट्स का कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा है, इस चीज़ को मेक श्योर कर पाएँ। ठीक है, तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द लीगल एडवाइजर्स एज वेल. So what are the procedures that an entity may implement to assist the prevention and detection of non-compliance with the laws and regulations? There are total 6 points to this. First one is monitoring the legal requirements and ensuring that the operational procedures are designed to meet these requirements. Secondly, instituting and operating the appropriate systems of internal controls. 3 points coming up in sequence are of code of conduct. First one is you will develop, publicize and follow a code of conduct. You will make sure that the employees are properly trained and they understand the code of conduct as well. Also, you will monitor the compliance with the code of conduct and you will make sure that the employees are disciplined enough to appropriately follow them. If in case they do not follow, tell them the consequences as well. If in case you are facing any issues, you can engage the legal advisors also to assist you in monitoring the legal requirements. Okay, so these were the 6 points of procedures that an entity may implement. Okay, let's move further. Okay, one more point is there, sorry I missed it. Seven points are there of the procedures. What is the 7th point? 7th point is maintain a register of the significant laws and regulations with which the entity has to comply within its particular industry and a record of the complaints. सो आप इसमें क्या कर सकते हो, देखो मैंने जब आपको बताया था ना कि मैनेजमेंट को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कौन से लॉज उस पर एप्लीकेबल है, कौन सी रेगुलेशंस उस पर एप्लीकेबल है, कौन सी रिक्वायरमेंट्स को उसको कंप्लायंस करना है। सो उसके लिए अब क्या कर सकती है एंटिटी या फिर मैनेजमेंट, वो क्या कर सकती है कि रजिस्टर मेंटेन कर सकती है कि ये पर्टिकुलर लॉज रेगुलेशंस हमारी एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल हैं और हमारी एंटिटी ही नहीं हमारी इंडस्ट्री पर अप्लाई होते हैं। तो जब इंडस्ट्री पर अप्लाई होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये ईजी हो जाएगा समझने के लिए कि हमारी एंटिटी पर भी हो सकता है ये अप्लाई हो रहे हूँ। सो दैट इज़ वाई I need to check whether these laws or regulations are applicable to my specific entity or not. So for that I can just maintain a register and I can just maintain a record of the complaints which I have received or I have got.
Okay, so these are the 7 points which the entity may implement to make sure compliance of the laws and regulations. Okay, now the main point, the main topic and the important topic for my examination point of view, I would say, would be the auditor's responsibility. कि मेरे को, मैं तो ऑडिटर हूँ, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, कंसिडरेशंस हैं. सो देयर आर 2 पार्ट्स टू दिस. फर्स्ट इज द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड सेकंड वन इज द रिस्पॉन्सेज टू दैट. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की बात करो तो मुझे क्या करना है, मुझे तो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल है. मुझे तो पहले ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. सेकेंडली आई विल सी और आई विल चेक वेदर और हाउ द मैनेजमेंट इज मेकिंग इट श्योर that or ensuring it that the compliance of laws and regulations is happening properly. Okay, so to just inquire the management, tell me what are the procedures that you have adopted. अभी हमने बहुत सारे procedures पढ़े ना, तो आपने कौन से procedures लगा रखे हैं. ठीक है, अब मैं इंक्वायरी करी, मैनेजमेंट ने आपको रिप्लाई दिया, और भी लोगों थे उनसे भी आपने इंक्वायरी वगैरह कर ली. नाउ रिस्पॉन्सेज के लिए व्हाट यू विल सी इज, आप ये देखोगे कि ऐसे कौन से उन लॉज में से जो उन्होंने लिस्ट बताई उसमें से कौन से लॉज ऐसे हैं जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं. जो भी मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा ना, उधर तो मैं डिटेल चेकिंग करने वाली हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ओपिनियन देनी है, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर रहा है भाई उसको तो मुझे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है. सेकेंडली, अगर कोई ऐसा लॉ रेगुलेशन है जो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहा है, इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, तो उस केस में मैं डिटेल्ड प्रोसीजर्स नहीं अपनाने वाली, मैं लिमिटेड प्रोसीजर्स करने वाली हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि कोई नॉन कंप्लायंस ना हो रहा हो. बस मुझे ज़्यादा डिटेल में चेकिंग नहीं करनी है कि सब कुछ ठीक है नहीं है, नहीं. मैं सिर्फ नॉर्मल इंस्पेक्शन कर सकती हूँ, देख सकती हूँ, चेक कर सकती हूँ कि, और ज़्यादा से ज़्यादा रिटन रिप्रेजेंटेशन ले सकती हूँ कि हाँ भाई बता दो कि आपने सारे कंप्लायंसेस किए हैं या नहीं. एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपको कोई भी नॉन कंप्लायंस मिलता है, कोई भी नॉन कंप्लायंस ऑडिटर की नज़र में आता है, तो उसके लिए ऑडिटर को एक WR ज़रूर ऑब्टेन कर लेना चाहिए फ्रॉम द मैनेजमेंट और द TCWG. व्हाट डू यू मीन बाय WR? WR इज़ द रिटन रिप्रेजेंटेशन. Okay, so just to have an audit documentation, audit evidence, you must obtain the WR from the management or the TCWG that these are the known instances which I as an auditor know कि ये सारे non compliances हुए हैं. You give me the WR for this. Okay, so let's understand it from the notes as well. Auditor's responsibilities, duties and considerations. So first one is the risk assessment procedure. The auditor has to obtain an understanding of the legal and regulatory requirements which are applicable to the entity. Secondly, he has to check how the management is ensuring the compliance of laws and regulations, that is the procedures which are being followed by the management. For this purpose, auditor may conduct the inquiry with the management and the other persons within the entity. Okay, now responses. First of all, those laws and regulations which are directly affecting the financial statements, and secondly those which are indirectly affecting the financial statements. So those which are directly affecting the financial statements, the auditor has to perform the detailed procedures so that he can collect the sufficient and appropriate audit evidences so as to make sure that the compliance of laws and regulations is being done. If the laws and regulations are not directly affecting the financial statements, the auditor will perform limited procedures to identify any instances of non-compliance. This can be done by inquiry, inspection or being alert, WRs obtain कर दिए, etc. etc. In addition, auditor should obtain the WR from the management and the TCWG that all the known instances जो उसको पता लग गए हैं of non-compliance reported to the auditor. Okay, let's move on to the next topic. This is also important. Auditor's duties if any non-compliance is identified. Now you are an auditor, आपको पता चले हैं कि कुछ non-compliances हुए हुए हैं और ये particular non-compliances हैं. तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि कौन से non-compliances हुए हैं, फिर समझने की कोशिश करोगे कि क्यों हुए, रीज़न क्या था ये नॉन कंप्लायंस होने का, और इस नॉन कंप्लायंस की वजह से मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर क्या इफेक्ट आ रहा है. सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी, ठीक है. फिर इस बात को मैनेजमेंट TCWG के साथ कम्युनिकेट करूँगी, उनको बताऊँगी कि ये नॉन कंप्लायंसेस हैं, अगर पॉसिबल है तो इनको कंप्लायंस कर दो. ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि नहीं मैटर मुझसे समझ में नहीं आ रहा है या मुझसे डील नहीं हो पा रहा है, मैं इस केस में लीगल एडवाइस भी ले सकती हूँ कि क्या कोई बुरा कॉन्सिक्वेंस तो नहीं हो सकता इसका मेरे ऊपर भी,
अगर कोई नॉन कंप्लायंस हुआ है और कंप्लायंस अभी नहीं हो पा रहा है या जो भी रीज़न है, तो इसका मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर कोई बुरा इफेक्ट ना आ रहा हो, मैं उसके इम्प्लीकेशंस हो सकता है उसके लिए मैं लीगल एडवाइस लेना पसंद करूँ। क्योंकि हो सकता है ना बहुत अलग अलग टाइप के लॉज होते हैं, कौन सा लॉ पता नहीं एप्लीकेबल हो रहा है, मुझे उसके बारे में कितनी नॉलेज है या नहीं है। सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आई कैन टेक द लीगल एडवाइस ऑल्सो. So what is my responsibility, not responsibility but my duty, when I have identified some of the non-compliances? I will obtain an understanding of the acts of the non-compliance कि कौन से non-compliance हुए उस चीज़ की understanding obtain करूँगी. Secondly, I will check what were the circumstances in which that non-compliance occurred, and I will evaluate the possible effects also of that non-compliance on my financial statements. Communicate it with the TCWG or the management for compliance कि आप इसका compliance कर दो if possible, and if required I might also take the legal advice. Clear till here? Okay, let's move on to this रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट. हर एक आपने ऐसे में अभी तक आपको ये चीज़ समझ आई गई होगी कि हर एक ऐसे में द फर्स्ट थिंग इज वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म्स एंड ऑल, देन वी अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एसे, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन वी सी द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एंड द डॉक्यूमेंटेशन. दिस इज व्हाट इज द मेन कंटेंट ऑफ द एनी ऑफ द एसेज. आप कोई भी एसे उठा लेना, हमेशा आपको ये चीज़ें मिलेंगी. कुछ एडिशनल थोड़े बहुत पॉइंट्स होते हैं वो एसे टू एसे वेरी कर जाते हैं, बट दीज आर द मेन हेडिंग्स, राइट. सो अब यहाँ पर भी आपको चेक करना है कि रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या रहेगी. तो अगर आपको चेक करना है रिपोर्ट कैसे करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सी क्या आपको एज एन ऑडिटर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एंटिटी के अंदर तो आपको बताने ही, देखो नॉन कंप्लायंस हुआ है, लेकिन क्या आपको एंटिटी के बाहर भी किसी को बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या नहीं. पहले इस चीज़ को चेक करो. अगर लगता है बनती है तो कर दो, नहीं बनती तो चेक करो वैसे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती मेरी, लेकिन क्या लॉज एंड रेगुलेशंस में लिखा हुआ है कि मुझे बताना पड़ेगा. अगर ऐसा है तो येस आई विल report the matter to the parties outside the entity. So regulatory and enforcement authorities को मैं तभी बताऊंगी जब laws and regulations के हिसाब से मेरी responsibility बनती है या वैसे मेरी responsibility बनती है तो ही मैं जाकर उनको बताऊंगी. ओके, नेक्स्ट TCWG को रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की बात करें तो TCWG को आपको वो मैटर्स बताने होते हैं जहाँ जहाँ पर नॉन कंप्लायंस हुआ है. फॉर ऑब्वियस रीजंस आप कंप्लायंस वाले तो नहीं बताओगे. अब कंप्लायंस हुआ है, हाँ जी TCWG कंप्लायंस हो गया है, TCWG कंप्लायंस हो गया, नो यू विल नॉट टेल देम सच स्मॉल थिंग्स. जब भी नॉन कंप्लायंस होगा यू विल कम्युनिकेट दोज मैटर्स जहाँ पर भी नॉन कंप्लायंस हुआ है, एंड ऑल्सो यू विल टेल देम कि इसका क्या पॉसिबल इफेक्ट आ सकता है मेरी ऑडिट ओपिनियन पर. क्योंकि अगर वो मटीरियली अफेक्ट कर रहे होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, डेफिनेटली मुझे चेक करना है, मैं डिटेल्ड प्रोसीजर्स लगाऊंगी. डिटेल्ड प्रोसीजर्स लगाने के बाद मुझे लगा कि मेरी ओपिनियन कहीं ना कहीं चेंज हो रही है रिगार्डिंग दिस एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आई विल डेफिनेटली डिस्कस इट विद द TCWG that because of this non-compliance these are the possible effects that are going to take place in my audit opinion. So tell me if you are able to comply with this, you can comply with this, तो comply करो, right. So these are the two reporting requirements firstly. Thirdly मुझे audit report में report करना होता है, उसकी बात करेंगे, but note पढ़ लेते हैं उससे पहले. if TCWG is involved, अब हम कह रहे हैं TCWG को बता देते हैं, but बताओ TCWG खुद ही मिली हुई है नॉन कंप्लायंस के चक्कर में, तो हम क्या करेंगे, हम इस केस में देखेंगे कि TCWG से भी ऊपर कोई हायर अथॉरिटी अवेलेबल है. अगर है तो उसको जाके बता देंगे, नहीं है तो भाई फिर देखना पड़ेगा कि लीगल एडवाइस ले लो क्या करना चाहिए. भाई यहाँ तो TCWG भी मिला हुआ है, तो अब इस केस में क्या करें, तो लीगल एडवाइस ले लो, अपने आप को सेफ रखो. ओके, नेक्स्ट ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिट रिपोर्ट में तो मुझे रिपोर्ट करना ही होता है ना. सो दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट. सिचुएशन 1 ये हो सकती है कि जो नॉन कंप्लायंस है वो मटीरियली अफेक्ट कर रहे हैं मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और सिचुएशन 2 ये हो सकती है कि मैं इस बात को कंक्लूड ही नहीं कर पा रही, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इस नॉन कंप्लायंस का मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मतलब मेरे को जिस पे ऑडिट ओपिनियन देना है उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा. देखो जब समझ आ रहा है, क्लियर है, मटीरियली अफेक्ट कर रही है, तो क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन दोगे, उसमें कोई भी दो राय नहीं है. ये जो ओपिनियन की बातें होती है ना, ये 700 सीरीज़ हमारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को डील करती हैं. जब भी हम ऐसे 700 करेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ आएंगी कि कब क्वालिफाइड बोलते हैं, कब एडवर्स बोलते हैं. अब जहाँ पर ऐसा लिखा होता है अभी के लिए आप समझ लो कि आप जब भी मटीरियली अफेक्ट कर रही है तो क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन दोगे. लेकिन अगर ऑडिटर कंक्लूड नहीं कर पा रहा कि पता नहीं इसका इफेक्ट मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर क्या होगा, कितना होगा, क्योंकि मुझे मैनेजमेंट ने काम नहीं करने दिया,
मुझे मैनेजमेंट ने उतने डिटेल में प्रोसीजर्स नहीं करने दिए जिससे कि मैं समझ पाऊँ कि क्या इफेक्ट होगा। तो अगर मैनेजमेंट लिमिटेशंस इम्पोज कर रही है तो मैं क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकती हूँ। अगर कुछ और रीजंस है, मैनेजमेंट ने कोई लिमिटेशन इम्पोज नहीं करी बट फिर भी मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, सो उस केस में मैं देखूँगी कि मेरे ओपिनियन पर क्या इफेक्ट आएगा। आई विल जस्ट इवेलुएट द सेम, ठीक है। सो दीज आर माई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट, this is important, indicators to be considered for verifying the compliance with the laws and regulations। अब आप कैसे वेरीफाई करोगे कि लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंस हो रहा है या नहीं, या क्या इंडिकेटर्स आपको हिंट दे सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, राइट। सो चेक करते हैं एक एक करके। मैंने इसको क्या किया है, जैसे अब पेमेंट्स का एक हेड बना दिया कि पेमेंट से रिलेटेड मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, फिर आगे जाके आप देखोगे अनयूजुअल से रिलेटेड 3 पॉइंट्स हैं। ऐसे करके मैंने थोड़ा ग्रुपिंग कर दिया जिससे आपको थोड़े से एटलीस्ट पॉइंट्स याद करने में ईजी हो जाए, ठीक है। बस याद करने के पर्पज से है, या अदरवाइज इसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू पेमेंट्स। पेमेंट्स किस चीज़ के लिए? फॉर अनस्पेसिफाइड सर्विसेज और लोन्स टू कंसल्टेंट्स, रिलेटेड पार्टीज, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। आप पेमेंट कर रहे हो, किसको कर रहे हो? एम्प्लॉयज़ को, कंसल्टेंट की रिलेटेड पार्टीज़ को पेमेंट कर रहे हो, या अपनी रिलेटेड पार्टीज़ को पेमेंट कर रहे हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पेमेंट कर रहे हो। और वो जो पेमेंट हो रही है ना, वो अनस्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए है, लोन्स के लिए है, तो किस बात के लिए कर रहे हो वो थोड़ा जस्टिफाइड नहीं लग रहा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लॉज का कंप्लायंस ना हो रहा हो, ऐसा हो सकता है। देखो, जब आप रिलेटेड पार्टीज़ को दे रहे हो तो आपको सेक्शन 188 ऑफ द कंपनीज एक्ट के बारे में पता होगा, है ना। तो सेक्शन 188 के अकॉर्डिंगली हो रहा है, नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को क्यों दिया जा रहा है पेमेंट? कोई वो तो नहीं दे रहे हो आप, कमीशन कहीं तो पे नहीं कर रहे हो अपना काम कराने के लिए, और बाकी आप समझ ही गए हो किस किस चीज़ के लिए दे सकते हैं। तो आप वो सब तो नहीं कर रहे हो, तो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज मेड अदर दैन टू कंट्री फ्रॉम विच द गुड्स ओरिजिनेटेड। आपने गुड्स मंगाए थे दुबई से, पेमेंट कर रहे हो टर्की को, क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द सेम? आपको चेक करना पड़ेगा ना कि पेमेंट जिसमें जहाँ से गुड्स मंगाए थे ना भाई, वहीं को पेमेंट करना चाहिए था, वहीं पर आप किसी और को पेमेंट क्यों कर रहे हो? चेक करो, कुछ गड़बड़ हो सकती है। नेक्स्ट, विदाउट प्रॉपर एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन। आपके पास कोई भी एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन उस चीज़ का नहीं है और पेमेंट कर रहे हो। हर चीज़ ऑथराइज्ड होती है, अगर ऑथराइज तरीके से नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट, अनयूजुअल से रिलेटेड 3 पॉइंट्स हैं। पहला, पेमेंट्स इन कैश, परचेजेस इन द फॉर्म ऑफ कैशियर्स चेक्स पेबल टू बियरर और ट्रांसफर्स टू दी नंबर्ड बैंक अकाउंट्स। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करो, कैश में पेमेंट कर रहे हो, वो भी अनयूजुअल। क्यों कर रहे हो? कैश में तो वैसे भी लिमिट होती है, आप ज़्यादा पेमेंट्स नहीं कर सकते, ज़्यादा रिसीट्स नहीं ले सकते। क्यों कर रहे हो? ज़्यादा पेमेंट्स कर रहे हो, अगर कोई खर्चे से रिलेटेड है तो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। भाई क्यों कर रहे हो? व्हाट इज़ द रीज़न? कैश में पैसा क्यों दे रहे हो? या फिर आप परचेजेस गलत तरीके से कर रहे हो, आप उन ऑथराइज्ड तरीक़ों से परचेजेस की पेमेंट नहीं कर रहे, वो बहुत अनयूजुअल सी चीज़ें लग रही हैं। सो इस केस में क्या है, देयर इज़ सम इंडिकेशन टू यू, इंडिकेशन इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय ऑल दीज ट्रांजैक्शन दैट देयर इज़ सम गड़बड़। आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा कि कहीं लॉज के अगेंस्ट जाके काम तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ट्रांजैक्शन विद द कंपनीज रजिस्टर्ड इन टैक्स हेवेंस। टैक्स हेवेंस का कॉन्सेप्ट आपने टैक्सेशन में पढ़ा होगा। टैक्स हेवेंस कंट्री के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? व्हाट इज़ द रीज़न? व्हाई आर यू डूइंग द ट्रांजैक्शंस विद देम? कोई आपको टैक्सेशन की चोरी करने के लिए तो नहीं किया जा रहा है ये ट्रांजैक्शन। इस चीज़ को मेक श्योर करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, कहीं टैक्सेशन लॉज का कंप्लायंस तोड़ने के लिए तो नहीं हो रहा है ये, चेक करो। पेमेंट्स टूवर्ड्स लीगल एंड रिटेनरशिप फीस। लीगल फीस पे करी है, अनयूजुअल। क्यों? कोई केस हुआ था, किस वजह से लीगल फीस पे करने की ज़रूरत पड़ी थी? कोई आपने नॉन कंप्लायंस किया था, कोई लॉ तोड़ा था, किस वजह से आपने ये पेमेंट करी, वो जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि इधर से आपको हिंट मिल रहा है ना कि हाँ, लीगल एडवाइस ली थी, लीगल पेमेंट्स करी है, बस कुछ तो गड़बड़ हुई थी जिसकी वजह से आप लॉयर के पास गए थे। यू नीड टू चेक द मैटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन और इम्प्रॉपरली रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। गलत तरीके से रिकॉर्ड कर रखी है, ट्रांजैक्शन ऑथराइज्ड नहीं है, गड़बड़ है। एडवर्स मीडिया कमेंट, मीडिया ने आपके इस नॉन कंप्लायंस को कवरेज दी थी।
मतलब कुछ तो गड़बड़ किया होगा ना, तभी तो मीडिया ने गलत कमेंट दिया है। चेक करो किस वजह से हुआ था। वैसे भी आजकल हर जगह हम देखें तो मीडिया पहुंच जाती है, तो हो सकता है आपने कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ी की भी हो तो मीडिया ने उसको कवर किया होगा। देखो क्यों दिया था एडवर्स कमेंट, क्या रीज़न था। इन्वेस्टिगेशन बाय द रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और द पेमेंट्स ऑफ फाइन्स, एडिशनल टैक्सेस और पेनल्टीज। आपकी बुक्स में दिख रहा है पेनल्टीज पे हो रखी हैं, काफ़ी सारे टैक्सेस दे रखे हैं, फाइन्स दे रखे हैं। क्यों? इन्वेस्टिगेशन हुई थी आपके एंटिटी पर, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी ना, कुछ तो शक हुआ होगा, तभी तो आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की गई है। तो व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन, चेक करो। ठीक है, नेक्स्ट, सेल्स कमीशन और एजेंट्स फीस that appears excessive in relation to those ordinarily paid by the entity or in its industry or to the services actually received. आपने कुछ कमीशन पे किया, एजेंट को फीस पे करी, वो फीस आपकी इंडस्ट्री में और भी लोग पे करते हैं फॉर द सेम टाइप ऑफ वर्क, बट आप कुछ ज़्यादा ही पेमेंट कर रहे हो। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? आपने जो सर्विसेज अवेल करी, उस सर्विसेज के बदले 1 लाख रुपए की पेमेंट वॉज जस्टिफाइड। ज़्यादा से ज़्यादा भी देखें तो जस्टिफाइड थी 1 लाख, आपने कर रखी है 10 लाख रुपए की पेमेंट। क्या रीज़न था भाई, क्यों की? यू नीड टू नो अबाउट दिस। इससे आपको कहीं ना कहीं इंडिकेटर मिल रहा है ना, कि आपका इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है कि कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट, परचेजेस एट प्राइसेस सिग्निफिकेंटली अबव और बिलो द मार्केट प्राइसेस। आपने परचेज किया, मार्केट में 10 रुपये का सामान था, आपको 2 रुपये में 5 रुपये में मिल गया। क्यों इतना हैवी डिस्काउंट, किस लिए, क्या रीज़न है इसके पीछे? सो यू नीड टू चेक। अगर आपको सपोज 10 रुपये का सामान मिल सकता तो आपने 20 रुपये में खरीदा है, क्यों इतना महंगा खरीदा? सिर्फ अपने प्रॉफिट्स कम शो करने के लिए, या फिर कुछ और ही बात है? एंट्री बुक्स में ऐसा तो नहीं 20 की दिखा रखी है, बट एक्चुअल में 10 में ही हुई थी, सिर्फ और सिर्फ खर्चा ज़्यादा बुक करने के लिए कर रखा है। चेक करो, कुछ नॉन कंप्लायंस तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है गड़बड़ कर रखी है। नेक्स्ट, existence of an information system which fails whether by design or by accident to provide an adequate audit trail or sufficient evidence. आपको कोई ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम मिला जो उसको काम करना चाहिए था, जो नहीं कर रहा है, ऑडिट ट्रेल प्रोवाइड करना चाहिए था, वो भी नहीं कर रहा है, सफिशिएंट एविडेंस प्रोवाइड करना चाहिए था, वो भी नहीं कर रहा है। एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको जो काम करना चाहिए था वो वैसा नहीं कर रहा है, आपको ट्रैक नहीं कर पा रहे हो। ऑडिट ट्रेल का मतलब होता है एक के बाद एक वो बन जाती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज बन जाती है। ठीक है, सो ऑडिट ट्रेल प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, सफिशिएंट एविडेंसेस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो कैसा इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्यों लगाया हुआ है? कुछ गड़बड़ी करने के लिए लगा रखा है क्या? इस चीज़ को चेक करो। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर ऐसे 250। हम इसको क्विकली सम अप करें, रिवाइज करें, जिससे कि थोड़ा सा एक बारी रिकॉल हो जाएगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ऐसे 250 के अंदर सबसे पहले द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट एंड विद द ओवरसाइट ऑफ CWG, कि उनको मेक श्योर करना है द कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस दैट डिटर्मिन्स द रिपोर्टेड अमाउंट्स एंड द डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर टोटली करेक्ट। इस ऐसे के अंदर वी आर गोइंग टू कवर अप द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर टू कंसिडर द लॉज एंड रेगुलेशंस व्हेन परफॉर्मिंग एन ऑडिट. Okay, the auditor is not responsible for preventing the non-compliance and cannot be expected to detect the non-compliance with all the legal and regulatory requirements. Procedures जो entity implement कर सकती है to assist in the prevention and detection of non-compliance with the laws and regulations, there are 7 points to this. The first one is the monitoring of legal requirements and ensuring that the operational procedures are designed to meet these requirements, instituting and operating the appropriate systems of internal controls. 3 points code of conduct, developing, publicizing and following a code of conduct, ensuring that the employees are properly trained and understand the code of conduct, also monitor the compliance with the code of conduct and check whether they are acting appropriately to discipline the employees who fail to comply with it. Engage the legal advisors if required to assist in the monitoring legal requirements. Maintaining a register of significant laws and regulations with which the entity has to comply within its particular industry, and a record of complaints can also be one of the procedures. I hope आप मेरे साथ रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या पॉइंट्स थे।
ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्यूटी होती है, कंसिडरेशंस होते हैं. दिस वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड सेकंड वन वाज रिस्पॉन्सेस. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में 2 पॉइंट्स थे, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की जो एप्लीकेबल है ऑन दी एंटिटी, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी थी और देखना था कि कैसे मैनेजमेंट इस बात को इंश्योर कर रही है कि कंप्लायंस हो रहा है या नहीं. इस चीज़ के लिए आप मैनेजमेंट के साथ, अदर लोगों के साथ जो भी एंटिटी के अंदर है उनके साथ इंक्वायरी कर सकते हो. अब आपको रिस्पॉन्सेज क्रिएट करने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक कि कौन से लॉज रेगुलेशंस हैं जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, कौन से ऐसे हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहे. डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं तो डिटेल्ड प्रोसीजर्स लगाओ, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करो, जिससे कि आप ये मेक श्योर कर सको कि सारे लॉज एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस हो रहा है. लेकिन अगर इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में लिमिटेड प्रोसीजर से काम चल जाएगा. बस आपको वो इंस्टेंसेस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है, ज़रूरत है कि जो नॉन कंप्लायंसेस वाले हैं. आप इसको कैसे कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो, इंस्पेक्शन कर सकते हो, अलर्ट रह सकते हो, WRs ऑब्टेन कर सकते हो. हर सिचुएशन में इस चीज़ को ध्यान रखना, जब भी आपको नॉन कंप्लायंसेस पता चलते हैं तो उस केस में आपको WRs ले लेने चाहिए ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द TCWG. अब एज एन ऑडिटर मेरी क्या ड्यूटी होगी, अगर कोई नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई होता है तो सबसे पहले मैं अंडरस्टैंडिंग लूँगी उस काम की जो नॉन कंप्लायंस हुआ है, जो एक्चुअल नॉन कंप्लायंस हुआ है, उस चीज़ को समझूंगी. फिर देखूंगी किस वजह से हुआ था, व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस इन विच द नॉन कंप्लायंस अकर्ड. थर्डली मैं ये देखूंगी कि उस नॉन कंप्लायंस का मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर क्या इफेक्ट आ रहा है. ठीक है, कम्युनिकेट करूंगी इस बात को मैनेजमेंट TCWG को कि भाई कंप्लायंस कर दो अगर पॉसिबल है तो. अगर मुझे कहीं पर ज़रूरत पड़ती है तो मैं लीगल एडवाइस भी ऑब्टेन कर सकती हूँ. नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक आ जाता है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, विच इज़ अगेन इंपॉर्टेंट, जिसमें मुझे 3 तरीके की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट दी हुई थी. फर्स्ट वन वॉज टू द रेगुलेटरी एंड द इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज, सेकंड वन वॉज टू द TCWG एंड थर्ड वन वॉज माई ऑडिट रिपोर्ट विच इज़ वेरी जनरल. ठीक है, तो रेगुलेटरी और इन्फोर्समेंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहले देखो कि क्या एज एन ऑडिटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी आउटसाइड पार्टी को इस इन्फॉर्मेशन को आपको बताना है. अगर बनती है तो कर दो, नहीं बनती तो चेक करो कि क्या लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से तो नहीं बन रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर बन रही है तो फिर आप उसको डिस्क्लोज करोगे, रिपोर्ट करोगे. दूसरा, TCWG को वो वाले मैटर्स बताओ जो नॉन कंप्लायंसेस के हुए हैं और उन नॉन कंप्लायंसेस का क्या पॉसिबल इफेक्ट आ सकता है आपके ऑडिट ओपिनियन पे, इस चीज़ को भी उनको बताओ. अगर TCWG खुद ही मिली हुई है तो देखो कि क्या कोई एंटिटी के अंदर हायर अथॉरिटी है जिसके साथ आप ये कम्युनिकेशन कर सकते हो. अगर नहीं है तो उस केस में आप लीगल एडवाइस ऑब्टेन कर सकते हो. ऑडिट रिपोर्ट की बात करूँ तो ऑडिट रिपोर्ट के केस में 2 सिचुएशंस हो सकती हैं. फर्स्ट, आपकी जो नॉन कंप्लायंसेस है वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मटीरियली अफेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा वो जो आपके एज एन ऑडिटर आप नहीं कंक्लूड कर पा रहे कि पता नहीं इसका एक पॉसिबल इफेक्ट क्या होगा इस नॉन कंप्लायंस का ऑन माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब ये अनेबल टू कंक्लूड वाली बात जो है, ये दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन कि मैनेजमेंट ने कोई लिमिटेशन इम्पोज करी है तो क्वालिफाइड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दो. लेकिन अगर ये अदर देन दोज रीजंस है तो उस केस में यू विल जस्ट इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑन द ऑडिटर्स ओपिनियन. Now, what are the indicators that are required to be considered for verifying the compliance with the laws and regulations? So, first point was related to payments. Payments के अंदर I had 3 points. Unusual is the second point, जिसके अंदर again we have 3 points. पेमेंट्स की बात करें तो पेमेंट्स हो रही हैं फॉर अनस्पेसिफाइड सर्विसेज, या फिर लोन्स दे रखे हैं टू द कंसल्टेंट्स, रिलेटेड पार्टीज, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, या फिर हमने पेमेंट्स कर रखी है फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज जो किसी और कंट्री से आए थे. कंट्री ए से हमने गुड्स मंगवाए थे, पेमेंट हम कंट्री बी को कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? नेक्स्ट, विदाउट पेमेंट कर रहे हैं विदाउट प्रॉपर एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन. नेक्स्ट, अनयूजुअल की बात करते हैं तो अनयूजुअल में भी 3 पॉइंट्स है. फर्स्ट, यू आर मेकिंग अनयूजुअल पेमेंट्स इन कैश, परचेजेस कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ कैशियर्स चेक पेबल टू बियरर और ट्रांसफर्स टू नंबर्ड बैंक अकाउंट्स. सेकेंड, ट्रांजैक्शंस कर रहे हो विद द कंपनीज जो कि रजिस्टर्ड हैं इन द टैक्स हेवन्स. क्यों अनयूजुअल ट्रांजैक्शन की जा रही हैं? अनयूजुअल पेमेंट्स कर रहे हो टुवर्ड्स द लीगल एंड रिटेनरशिप फीस. थर्ड पॉइंट अंडर दिस, मेन 3 पॉइंट्स में से थर्ड पॉइंट, अनऑथराइज ट्रांजैक्शंस हो रही हैं या फिर इम्प्रॉपरली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जा रहा है. एडवर्स मीडिया कमेंट है, कोई रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने आपकी एंटिटी पर इन्वेस्टिगेशन किया था, आप काफ़ी ज़्यादा फाइन्स पे कर रहे हो, एडिशनल टैक्सेस पेनल्टीज पे कर रहे हो, तो इंडिकेटर है. सेल्स कमीशन और एजेंट्स फीस जो आपकी इंडस्ट्री में जनरली पे की जाती है आप उससे ज़्यादा पे कर रहे हो, या उस पर्टिकुलर काम के लिए जितनी पे करनी चाहिए थी उससे ज़्यादा की जा रही है. क्यों करी जा रही है? परचेजेस आप जो कर रहे हो वो या तो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट, ज़्यादा मार्केट में जितने का मिल रहा है उससे सिग्निफिकेंटली हाई हो रही है, सिग्निफिकेंटली लो हो रही है, या फिर एक ऐसा इन्फॉर्मेशन सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है जो
आपने इस तरीके से या तो जानबूझ के बनाया है या फिर ऐसा बन गया, इंटेंशनल नॉन इंटेंशनल हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जो गलत ऑडिट ट्रेल दे रहा है या आपको ऐसा काम, मतलब बेसिकली इसमें ये था कि आप जो काम कर रहे हो उसका ऑडिट ट्रेल की मदद से सफिशिएंट एविडेंस आपको ये मिल रहा है कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा है जो उसको करना चाहिए था। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ऐसे। हमने इसका अच्छे से समझ भी लिया, इसको रिविजन भी कर लिया है एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा और अच्छे से आप इसके आंसर्स कर सकते हैं। तो आपको बस अभी कुछ नहीं करना, आपने ये वीडियो देख लिया है, आपको बस इस ऐसे को एक बारी रिव्यू करना है, बस नोट्स को एक बारी रिव्यू कर लो और उसके बाद फटाफट से अपने क्वेश्चन आंसर्स को खोल लो, क्वेश्चन आंसर्स करो। क्वेश्चन आंसर्स नहीं करोगे तो आपको नहीं समझ आएगा कि ऐसे इसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दी क्वेश्चन। ओके, सो या दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। एंड अगर आप न्यू हो और आपने ये वीडियो अभी तक देखा है तो आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया, तभी आप अभी तक वीडियो को देख रहे थे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आई विल बी अपलोडिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज़ इन द फ्यूचर ऑल्सो। सो जस्ट बी देयर एंड वॉच द वीडियोज़ एज मच एज यू कैन इफ़ यू आर लाइकिंग देम। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको एक थम्स अप देना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और मुझे आप कमेंट करके भी बता सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है या आपके कोई सजेशंस हैं। सो दैट इज़ इन्वाइटेड फ्रॉम योर साइड। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।